कौन कौन सी चीज़ें जो स्किन के लिए एब्सोल्युटली नहीं करनी चाहिए? सो मेरे हिसाब से सबसे पहले आज का टॉपिक विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट बहुत ज़्यादा धूप के बारे में बात करना चाहिए. सैडली इंडिया में कोई धूप को समझता ही नहीं है. हम भारत में हमेशा से हमने सूरज को हमेशा भगवान माना है. बट वो ज़माना अलग था, ना इतना पोल्यूशन था, ना इतनी तकलीफ़ें थी, ना ओजोन लेयर डिस्टर्ब हुआ था. अब क्योंकि ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो गया है, जो सूरज की किरणें जो अपने अर्थ की सरफेस पे आ रही है, इट्स वेरी हार्श. आपको पता है व्हाट अ कॉमन स्टेटमेंट इज व्हेन आई से डू यू अप्लाई सनस्क्रीन? यू नो व्हाट्स द कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग पीपल हैव? क्या? द फर्स्ट थिंग इज मैं तो धूप में जाती ही नहीं हूँ, मैं तो धूप में जाता ही नहीं हूँ. एंड दिस माइंड यू नॉट ओनली कम्स फ्रॉम अ हाउस वाइफ, इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ वेरी हाई एम्प्लॉयड गाय और अ गर्ल हु थिंक्स दैट शी इज ऑलवेज इन द AC. But what I mean is something which is called as 5 minutes today from your parking lot to your office, from your office back to parking lot, maybe the place where you had lunch and then you hopped into your car. Now imagine it's 5 minutes one day. Added up to a month, it is 150 minutes. That means for 150 minutes, at 1:30 when you stepped out to have lunch, you have a cumulative damage happening to your skin. कितना डैमेज कर देती है अगर मैं 5 मिनट सन में जाता हूँ तो स्किन को? आप 5 मिनट के बारे में मत सोचना. यू मल्टीप्लाई 5 minutes पर मंथ इंटू पर ईयर एंड योर एज नाउ. हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल गिव मी सम काइंड ऑफ लॉजिक और सम काइंड ऑफ मैथ कि अगर मैं 1 घंटा धूप में होता हूँ तो कितना डैमेज कर देता है मेरी स्किन को. इज देयर सम मैथ? या ideally there's something which is called as an SPF in sunscreen that protects you against UVB. अब जो SPF 30 की सनस्क्रीन होती है that will protect you around 150 minutes. You multiply by 5. But there is something which is called as UVA damage, which is something which calls A से aging, B से burning. So UVA and UVB were two lights that existed. PA++ जो होता है सनस्क्रीन के ऊपर वो UVA के लिए होता है, और SPF जो होता है वो UVB के लिए होता है. अब तुम दोनों को डालते हो एक बॉटल में, तब सनस्क्रीन के बॉटल के ऊपर लिखा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम. अब ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है. अब कोविड आ गया, हम सब ने लैपटॉप खोला, वी स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट लाइक वी डूइंग इन अ स्टूडियो. एंड व्हाट आर दीज लाइट? नाउ दीज आर ब्लू लाइट. सो नाउ यू हैव UVA plus UVB plus blue light. So if you really ask me the cumulative sun damage, every moment you are getting yourself damaged. Me, I am the getting damaged fully. Okay. So ideally now, in the latest trend and the lifestyle that we are all living, we should ideally also start using sunscreen indoors. The earlier you realize this, the younger you're going to stay. अभी भी उतनी प्रॉब्लम है, लोग नहीं लगाते. See, we are talking about people who understand science. We are not talking about a huge sector of people. And I'll tell you something, beauty is something that everybody is bothered. Okay, so every day if you see, let's say 10 patients example, तो 10 patients में से कितने patients होते हैं जो सनस्क्रीन लगाते ही नहीं है या उनको पता ही नहीं इन सब के बारे में? 5 से 6. Every day? Every day 5 से 6 in 10. आप जो पूछ रहे हो, क्या बात कर रहे हो? Is it still that under? Yeah, I'll tell you why. क्योंकि बहुत लोगों को सनस्क्रीन कैसे लगाना पता नहीं है, कौन सा लगाना पता नहीं है, कितने बार लगाना है पता नहीं है. Lot of men and boys don't like it because it's greasy. In fact, I have kids telling it disturbs my game because if it goes into my eyes, it burns. So people still have to reach there. Unlike in the US, wherein every kid is applied sunscreen right from 6 months, because American Academy of Dermatology says that you need sunscreen right from 6 months of age till the time you die. India में इतना अभी तक consciousness आया नहीं है, इतनी ज़रूरत भी नहीं थी up to a time. Of late, we've realized that in India also now we really need a sunscreen. And in fact, I was reading for the podcast only because of moisturizer, sunscreen and all of that, कि I don't know how true that stat is, क्योंकि किसी अच्छी कोई रिसर्च या स्टडी में नहीं था. It was just some random Google fact. So I don't know I should quote it or no, but I'll just share it with you. Tell me if in your experience अगर ये सही है कि नहीं है. Less than 20% लोग मॉइस्चराइजर यूज करते हैं. अब होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आप एक सूखी हुई पत्ते को सन के नीचे रख दो, और आप एक लोटस के पत्ते को जो हाइड्रेटेड है और मॉइस्चराइज्ड है उसको सन के नीचे रखो. डैमेज किसमें ज़्यादा होगा? सूखे पत्ते. एग्जैक्टली. सो मॉइस्चराइजर बिकम्स पार्ट ऑफ योर रेजिम. अब मैं आपको क्लेंजर का एग्जाम्पल देती हूँ. आप एक सूखे हुए पत्ते पे एक हार्श सैलिसिलिक एसिड वाला क्लेंजर लगा रहे हो, आपने कोई ऐड में देख लिया, और आप एक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हाइड्रेटेड क्लेंजर लगा रहे हो एक सूखे पत्ते पे. डैमेज किसमें ज़्यादा होगा? जो हार्ड वाला है. एग्जैक्टली. सो नाउ योर टाइप ऑफ स्किन, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन है क्या?
आपका एज, आपका प्रोफेशन, आप धूप में कितना रहते हो, आप कौन सा क्लेंजर यूज़ करके बाहर जाते हो, आप मॉइस्चराइज़र करते हो कि नहीं, ये सब कुछ आ जाता है इनटू योर हेल्थ ऑफ स्किन। तो ऐसे 10 में से सबके सब कुछ ना कुछ तो क्लिनजिंग यूज़ करती होंगे कि नहीं? मुंह धोना तो आई थिंक हर कोई आ गया करता है। है। ठीक है, मुंह धोते उसमें कितने हैं। लोग क्लेंजर यूज़ करते हो, कितने लोग सोप यूज़ करते हैं अभी भी? आजकल OTC प्रोडक्ट्स तो काफ़ी लोग क्लेंजर यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि लोगों ने फेस वॉश क्लेंजर OTC होने लग गए। और एडवर्टाइजमेंट की वजह से अब ये समझ में आ गया है कि साबुन से मुंह धोने की वजह से मेरा स्किन खराब होता है, तो वो ओरिएंटेशन आ गया है। ओके, आजकल धूप के बारे में भी OTC इज ट्राइंग हार्ड एंड आई एम very, वेरी very. हैप्पी हाँ. बिकॉज नाउ एवरीबडी रियलाइजेस कि ये धूप की वजह से ही हो रहा है मुझे। ओके, सो सनस्क्रीन 6 लोग करते हैं, क्लेंजर ऑलमोस्ट सब, मतलब मुंह तो धो ही लेते हैं हर कोई कुछ ना कुछ करके। मॉइस्चराइजर कितने लोग लगाते हैं आउट ऑफ 10? मॉइस्चराइजर इफ़ यू आस्क मी, मैं मुंबई की बात कर रही हूँ, मेरा प्रैक्टिस मुंबई में है, तो आउट ऑफ 10 मे बी 1 or 2 जिनको लगता है कि ड्राइनेस है तो ही मुझे यूज़ करना है, वरना तो ग्रीसी और ऑयली हो जाएगा बिकॉज यू यूजिंग अ रॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉइस्चराइजर। मोस्ट ऑफ देम लैंड अप यूजिंग बॉडी का मॉइस्चराइजर ऑन द फेस। So of course the body skin is thicker than the face. The body has lesser oil glands face के हिसाब से. A lot of pharma companies scientifically formulate facial moisturizers very different that of the body, and that's what goes in a humid city like Mumbai. तो ह्यूमिड सिटी लाइक मुंबई, इधर यूज़ करना चाहिए मॉइस्चराइजर? आइडियली मॉइस्चराइजर हर किसी को यूज करना चाहिए, ऐसी ह्यूमिडिटी में भी। Yes, क्योंकि अगर चिपचिप हो जाता है। अगर आपके सनस्क्रीन में मॉइस्चराइजर है, जो आजकल सब सनस्क्रीन में रहते हैं, तो आपको अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है। वरना आइडियली योर स्किन नीड्स हाइड्रेशन, क्योंकि डिहाइड्रेटेड होता है। हम AC में बैठे हैं, स्किन इज डिहाइड्रेटेड। ड्राई स्किन और डिहाइड्रेशन में बहुत डिफरेंस है। आप ड्राई स्किन के साथ पैदा होते हो, आपका लाइफस्टाइल आपको डिहाइड्रेट करता है। टू मच ऑफ कॉफ़ी डिहाइड्रेशन, टू मच ऑफ स्मोकिंग डिहाइड्रेशन, 3 दिन से रात को सोए नहीं हो, बहुत पानी नहीं पिया है, ट्रैवल कर रहे हो, डिहाइड्रेशन। स्किन डिहाइड्रेटेड बर्न्स ईजीली। अगर आपने मॉइस्चराइज किया है तो एटलीस्ट एक्सटर्नली और प्रिवेंटिंग योर स्किन जलने से। So a guy like you who's so young, who's got an oily skin, who's in Mumbai, who's usually indoors, honestly does not need an exceptionally different moisturizer. Okay. If your sunscreen has it. But if your sunscreen does not have a moisturizer, it's a physical blocker, is zinc oxide, titanium oxide, then it's always better to apply a moisturizer. मैं रात को लगाता हूँ मॉइस्चराइजर। Summing up about moisturizer is also the way you wash your face. If you have an acne prone face, you should use an oil control face wash. If you are used an oil control face wash, immediately after the face wash you feel dry. अब आपको ड्राई लगता है तो आप उसको वैसे ही छोड़ते हो, सीधा सनस्क्रीन लगाते हो तो आपको फिर जलने लगता है। तब आपको एक मस्टर्ड या तो हाफ अ पी साइज मॉइस्चराइजर को डैम्प स्किन पे सील करना है। तो क्वांटिटी यूज्ड ऑल्सो मैटर एंड द वे यू अप्लाई ऑल्सो मैटर्स। And after 5 minutes, you have to layer it with sunscreen. And that is ideally a skincare regime which is cleansing, moisturizing, protection, and sunscreen. The day you start using a moisturizer, your skin starts looking younger, suppler, fresher, less tired, less dehydrated. मतलब क्या होता है? Softness. Okay. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।